کہ جنوبی پنجاب کے زائرین کے لیے بڑی خبر، صوبے بھر میں SOPs کے ساتھ مزار کھول دیے گئے۔ سیکٹری پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر نے نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا ہے۔ ملتان سمیت پنجاب بھر کے مزارات کھل گئے، عقیدت مندوں کا تانتا بند گیا۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ مزارات سے ان کا رشتہ بہت اہم ہے۔ نہیں، اب اللہ کی رحمت ہے، میرے بزرگوں کی دعائیں، میرے سائیوں کی دعائیں، بڑے سونے طریقے سے سکون سے ٹائم گزر رہا ہے اب تک۔ کل کی کہتے ہیں مجھے سرکار بیٹھے، جب تک بیٹھے قدموں میں ٹائم پاس کریں، انشاءاللہ کرتے رہیں گے، اللہ کی رحمت ہے، مولا کے صدقے۔ انتظامیہ نے کورونا SOPs کے تحت شہریوں کو مزارات میں داخلے کی اجازت دے دی۔ عقیدت مندوں کو سینیٹائزر اور ماسک کا استعمال یقینی بنانا ہوگا۔ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ انہوں نے رش بڑھنے کی صورت میں بہترین حکمت عملی بنا رکھی ہے۔ پھر 10 کے بعد پھر 10 آتے ہیں، لیکن کچھ پیر بھائی جو دور دراز سے آتے ہیں ان کے مسئلے مسائل بھی ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہم اکٹھے ہم جو ہے، لیکن پیر صاحب کہتے ہیں نہیں، حکومت کی ہدایت ہے کہ آپ نے 10 سے زیادہ رش نہیں کرنا، تو اس کے مطابق وہ 10 آتے ہیں، پھر 10 باہر چلے جاتے ہیں۔ مزارات میں کوئی عقیدتیں نچھاور کرتا رہا ہے تو کوئی دعاؤں میں مشغول نظر آیا۔ شہریوں نے کرونا وائرس کے خاتمے کے لیے بھی خصوصی دعائیں کی۔ کورونا کے خدشات کے باعث بند کیے جانے والے مزارات کھلنے پر عقیدت مند کورونا SOPs کے تحت مزارات میں حاضری دے رہے ہیں۔ کیمرامین نعیم قریشی کے ساتھ وسیم شہزاد، ملتان۔ کچھ بات کریں مہنگائی پر تو ناظرین، عوام پر مہنگائی کا ایک اور بم گرا دیا گیا ہے۔ پنجاب بھر میں CNG 1 روپے 40 پیسے مہنگی کر دی گئی ہے۔ CNG اب عوام کو 88 روپے 30 پیسے فی لیٹر میسر آئے گی۔ مہنگائی کی چکی میں پیسے عوام پر ایک اور بار حکومت نے CNG 1 روپیہ 40 پیسے مہنگی کر دی۔ CNG قیمت بڑھنے پر شہری شدید برہم ہو گئے، حکومت کو سنا دی۔ متوسط طبقہ ہے وہ تو اس وقت خودکشی کے دھانے پہ ہے، ٹھیک ہے، غریب تر ہوتا چلا جا رہا ہے اس ملک میں، امیر تر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ جو ضروریات کی چیزیں ہیں جس سے انسان نے زندہ رہنا ہے، سروائیو کرنا ہے، وہ یہ لوگ مہنگی کر رہے ہیں۔ انہیں ہوش کے ناخون لینے چاہیے، خدا خوفی کرنی چاہیے۔ اضافے کے بعد CNG قیمت 88 روپے 30 پیسے فی لیٹر ہو گئی۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ انہوں نے CNG سستی ہونے پر گاڑیوں میں کٹیں لگوائیں، اب دوبارہ پیٹرول کی طرف جانا پڑے گا۔ حکومت متوسط طبقے پر رحم کرے۔ CNG اس لیے لگوائی ہے کیونکہ یہ کاروں کا خرچہ زیادہ ہوتا ہے، اسی وجہ سے ہم نے یہ CNG لگوائی ہے کیونکہ یہ خرچہ کم سے کم ہو، اور حکومت سے ہماری گزارش ہے کہ CNG جو ہے یہ ڈالر ویرینٹ آئل کی قیمتیں بڑھنے کے باعث CNG مہنگی ہوئی۔ کیمرامین نعیم قریشی کے ساتھ وسیم شہزاد، ملتان۔ مہنگائی کو بریک نہیں لگ سکی۔ ایک ہفتے کے دوران عام استعمال کی 20 اشیاء مزید مہنگی ہو گئیں۔ ٹماٹر کی قیمت میں 2 روپے 60 پیسے جبکہ آلو کی قیمت میں 1 روپے 9 پیسے فی کلو اضافہ ہو گیا۔ دوسری جانب لہسن 9 روپے 24 پیسے کلو مہنگا ہو گیا، جبکہ پیاز کی قیمت 76 پیسے بڑھ گئی ہے۔ بڑا گوشت 3 روپے کلو مہنگا کر دیا گیا ہے، جبکہ انڈے بھی 3 روپے 7 پیسے فی درجن مہنگے ہو گئے ہیں۔ مہنگائی کو بریک نہ لگ سکی۔ ایک ہفتے کے دوران عام استعمال کی 20 اشیاء مزید مہنگی ہو گئی۔ ادارہ شماریات کی رپورٹ کے مطابق ٹماٹر اوس 2 روپے 60 پیسے اور آلو 1 روپے 9 پیسے فی کلو مہنگے ہوئے۔ پیاز اوس 76 پیسے اور لہسن 9 روپے 24 پیسے فی کلو مہنگا ہوا۔ گائے کے گوشت کی فی کلو قیمت 3 روپے 1 پیسے بڑھی۔ انڈے فی درجن 3 روپے 7 پیسے مہنگے ہوئے اور چینی 3 پیسے مہنگی ہوئی۔ ادارہ شماریات کی رپورٹ کے مطابق زندہ مرغی 46 روپے 63 پیسے فی کلو سستی، آٹا 20 کلو کا تھیلا 8 روپے 55 پیسے سستا ہوا۔ دال مونگ کی فی کلو قیمت میں 3 روپے 85 پیسے کمی ہوئی۔ ناظرین، رمضان میں چینی پر سبسڈی میں کرپشن کا انکشاف۔ سبسڈی والی چینی بہاولپور کے رمضان بازاروں کی بجائے اوپن مارکیٹ میں بیچی گئی۔ ڈائریکٹر اینٹی کرپشن بہاولپور نے ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر رحیم یار خان کے خلاف تحقیقات کا حکم دے دیا۔ شیخ طاہر کی چینی کرپشن کی لیک کال پر انکوائری بھی شروع کر دی گئی ہے۔ 2 رکنی تحقیقاتی کمیٹی بھی قائم کر دی گئی ہے۔ رمضان میں چینی پر سبسڈی میں کرپشن کا اہم انکشاف ہوا ہے۔ سبسڈی والی چینی بہاولپور کے رمضان بازاروں کی بجائے اوپن مارکیٹ میں دھڑا دھڑ بیچی گئی۔ جاوید ہاشمی کی عمارتوں کو مسمار کرنے کا معاملہ، ہائی کورٹ ملتان بینچ نے ضلع انتظامیہ سے قانونی تقاضے پورے کرنے کے حوالے سے جواب طلب کر لیا۔ جسٹس علی باقر نجفی نے درخواست گزار کے وکیل سے استفسار کیا کہ اگر تعمیرات موجودہ قانون سے پہلے کی ہیں تو دستاویزات پیش کریں۔ میں سینئر سیاستدان جاوید ہاشمی کی بیٹی اور داماد کا اسکول اور شادی ہال سمیت دیگر عمارتیں گرانے سے متعلق درخواست پر سماعت ہوئی۔ اسسٹنٹ کمشنر صدر عدنان بدر
और चीफ मेट्रोपॉलिटन ऑफिसर इकबाल फरीद पेश हुए। अदालत ने पूछा कि तामीरात किस कानून के तहत मस्मार की गईं। चीफ मेट्रोपॉलिटन ऑफिसर इकबाल फरीद ने कहा कि बस्ती मलूक, मखदूम रशीद समेत दीगर इलाकों में 20 के करीब तामीरात के खिलाफ ऑपरेशन हुआ। असिस्टेंट कमिश्नर सदर ने कहा कि पिटीशनर को नोटिस भेजे, अमल दरामद ना होने पर ऑपरेशन किया। मैप अप्रूव ना कराने की, एनओसी वगैरह ना लेने की वजह से हमने नोटिस भी सर्व किए थे हमारे जो इन्फोर्समेंट विंग है उसने, और जब उनकी तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आया, ये सिर्फ अकेली इनकी इमारतें नहीं थी, इसके अलावा 15-16 और भी इमारतें थी, मैरिज हॉल थे, लैंड सब डिविजन थी, कमर्शियल मार्केट्स थी, जिनको गिराया गया है। उन लोगों के साथ हमने किया है जिन्होंने कोई रिस्पांस नहीं दिया और ना ही उन्होंने नक्शा पास करवाने के लिए कोई राब्ता किया। पिटीशनर के वकील ने कहा कि कोई नोटिस मसूल नहीं हुए। अदालत आलिया ने रिमार्क्स दिए कि जगह पुरानी थी या नहीं और नुकसान कितना है, कहें तो लोकल कमीशन मुकर्रर कर देते हैं, जिस पर वकील ने मशावरत के लिए मोहलत मांग ली। कोर्ट्स ने दोनों फरीकैन का मौक़िफ़ सुनने के बाद उन्होंने ये फरमाया, उनको वाज़ेह तौर पर कहा कि फ्रेश आपकी वो बने हुए हैं, अगर आप कमीशन मुकर्रर करवाना चाहें तो वो भी हम कर देते हैं, नहीं तो आप इनको अप्रोच करें और जो साइट प्लान जो भी है वो करें तो ये उसको देख लेते हैं अथॉरिटीज़ जो हैं। तो इसके लिए उन्होंने टाइम मांग लिया पिटीशनर साइड ने। पिटीशनर महमूना हाशमी के कौंसल्स ने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि इंतजामिया ने इमारतें मस्मार की, लेकिन वजह नहीं बताई। इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाया जा रहा है, इंसाफ फराहम किया जाए। कैमरामैन अब्दुर्रहमान के साथ माहिर इमरान नवाज, मुल्तान। चौधरी परवेज इलाही इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी अस्पताल मुल्तान का तौसीही मंसूबा माली साल 2021 में भी मुकम्मल नहीं हो सका। मंसूबे को मुकम्मल होने के लिए मजीद 400 मिलियन से जायद फंड्स की जरूरत है। मंसूबे के लिए हुकूमत की जानिब से 100 मिलियन फंड गुज़श्ता माह ही जारी किए गए थे। चौधरी परवेज इलाही इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का मंसूबा ताखीर का शिकार। फंड्स की अदम दस्तियाबी के बायस मंसूबा रवा माली साल में भी मुकम्मल न हो सका। तोसी मंसूबे में आउटडोर वार्ड्स, पार्किंग, हॉस्टल भी शामिल हैं, जबकि मंसूबे के लिए गुज़श्ता माह 100 मिलियन रुपए जारी किए गए हैं। नया ओपीडी जो है वो तकरीबन 32 ओपीडी कमरों पर मुश्तमल है, जबकि पुराने ओपीडी में सिर्फ हमारे 10 कमरे हैं। तो इससे हमारा बहुत ज़्यादा ये होगा कि जो लोड इस वक्त इस पुरानी बिल्डिंग पर पड़ा हुआ है वो सारा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और ये सारा नए ओपीडी में शिफ्ट हो जाएगा। डायरेक्टर कार्डियोलॉजी प्रोफेसर डॉक्टर राना अल्ताफ का कहना है, नए फंड से तोसी मंसूबा मुकम्मल करने में मदद मिलेगी। रवा साल अक्टूबर में 26 कमरों पर मुश्तमिल ओपीडी, बड़ी पार्किंग समेत डॉक्टर नर्सिस का हॉस्टल फाल कर दिया जाएगा। मौजूदा ओपीडी सिर्फ 8 कमरों पर मुश्तमिल है, जिसके बायस मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता था। 1200 मिलियन के करीब हैं पैसे जो आने हैं और इंशाल्लाह ताला वो मुझे पूरी उम्मीद है कि वो सारे आ जाएंगे इसी साल फाइनेंशियल ईयर में। तो इसी साल के या अगले साल के जून से पहले हम इंशाल्लाह ताला इंडोर के 208 बेड भी शुरू कर देंगे और वो पूरे का पूरा मंसूबा जो है वो वर्किंग में आ जाएगा। कार्डियोलॉजी अस्पताल के तोसी मंसूबे के इंडोर को भी आइंदा साल के जनवरी या फरवरी तक फाल कर दिया जाएगा। कैमरामैन तनवीर गिलानी के साथ बिलाल नियाजी, मुल्तान। निश्तर अस्पताल के बाहर रोही की टीम पर हमले का मामला। एमएस डॉक्टर शाहिद महमूद बुखारी ने वाकई को अफसोसनाक करार देते हुए जिम्मेदारान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की यकीन दहानी करा दी। बिलाल नियाजी की रिपोर्ट देखिए। गुज़श्ता रोज ठेकेदारों के कारिंदों ने तिब्बी फुजले की कवरेज के दौरान रोही टीम पर हमला किया और कवरेज से रोका। एमएस निश्तर अस्पताल डॉक्टर शाहिद महमूद बुखारी ने रोही को बताया है कि वाकये का सुनकर अफसोस हुआ। 3 रुकनी कमेटी कल रिपोर्ट पेश करेगी। उन्होंने कहा कि 10 लाख रुपए मंथली लेने का इल्जाम बेबुनियाद है, इस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। ठेकेदार है, उसके कोई अफराद ने बदतमीजी की, मैं उस सिलसिले में इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे चुका हूँ, जिसमें मीडिया के जो दोस्त हैं उनका मौक़िफ़ और जो ठेकेदार के आदमी हैं उनका मौक़िफ़ लेके वो कमेटी मुझे कल तक एक रिपोर्ट तैयार करके दे देगी। उसमें जो भी कसूरवार पाया जाएगा उसके खिलाफ कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी। उनका मज़ीद कहना था कि इंसिनरेटर के मामलात का जायजा लेने के लिए मॉनिटरिंग टीम तश्कील दे दी गई है। इंसिनरेटर के अतराफ में कैमरा लगवाने की भी कोशिशें जारी हैं। इंसिनेटर के बारे में जो ये शिकायत आई है कि इन्फेक्शियस वेस्ट इंसिनेटर में जलाने की जगह उसको फ़रोग़ किया जाता है, उस पर भी मैंने सुपरविजन के लिए एक एएमएस को तैनात कर दिया है, जो रोज़ाना से इस चीज़ की स्ट्रिक्टली मुआयना करेंगे। एमएस निश्तर अस्पताल डॉक्टर शाहिद महमूद बुखारी का मजीद कहना था कि 1 रोज तक रिपोर्ट आ जाएगी, उसके बाद मजीद कार्रवाइयाँ अमल में लाई जाएंगी। कैमरामैन अब्दुर्रहमान के साथ बिलाल नियाजी, मुल्तान। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, शेख ज़ैद अस्पताल रहीम यार खान में
88 तजुर्बाकार मुलाजमीन नौकरियों से फारिग कर दिए गए। कार्डियोलॉजी, आई साइकेट्री, फार्मासिस्ट, डेंटल, IT और इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट बुरी तरह मुतासर। मुलाजमीन ने MS ऑफिस के सामने बहाली के लिए एहतजाजी धरना दे दिया। मुलाजमीन कहते हैं कि बैठे रहेंगे जब तक उन्हें बहाल नहीं कर दिया जाता। शेखजाद अस्पताल में ग्रेड 16 से ग्रेड 18 के इडहाक मुलाजमीन को नौकरी से फारिग कर दिया गया। निकाले गए 88 मुलाजमीन 15 साल से शेखजाद अस्पताल में काम कर रहे थे। मुलाजमीन अपनी बहाली के लिए MS ऑफिस के सामने एहतजाजी धरना दिया। मुलाजमीन का कहना था कि इंतजामिया को 15 साल बाद मुलाजमीन गैर कानूनी होने का ख्याल आया। उन्होंने इंटरव्यू समेत तमाम मराहिल तय करके नौकरी हासिल की। टेक्निकल स्टाफ निकलने से अस्पताल में तिबी सहूलियत की फराहमी और अहम ऑपरेशन रुक गए हैं। हम लोग का डिपार्टमेंट जो आई डिपार्टमेंट है वो बहुत मुतासिर है। आई के अलावा यहाँ पे डेंटल, साइकेट्रिस्ट और ये फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, सारा हॉस्पिटल का सिस्टम ही कोलैप्स हुआ है। हमारी तरफ एक मुतालबा है गवर्नमेंट से कि हमें बहाल किया जाए, ठीक है, हमें हर तरीके से हमारी सपोर्ट की जाए ताकि हम लोग आगे भी ह्यूमैनिटी की जितनी भी हम कोशिश कर सकते हैं उन्हें सही करने के लिए वो करें। निकाले जाने वाले मुलाजमीन में 20 फार्मासिस्ट, 4 डेंटिस्ट, आई स्पेशलिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, कार्डिक टेक्नीशियन, इंजीनियर और IT स्पेशलिस्ट शामिल हैं। जिस शेखजाद हॉस्पिटल के वो 88 मुलाजमीन हैं जो निकाले गए हैं और जो शेखजाद हॉस्पिटल में तिबी सहूलियत की फराहमी के हवाले से रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते थे, इनके निकालने से शेखजाद हॉस्पिटल में जारी तिबी सहूलियत बड़ी बुरी तरह से मुतासिर हुई। कैमरामैन अनवर सवेल के साथ आसिम सदीक, रोही, रहीम खान। लिया में 1950 में बनाई गई जनूबी एशिया की सबसे बड़ी ज़राई वर्कशॉप हुकूमती अदम तवज्जुही का शिकार हो गई। करोड़ों की हैवी मशीनरी गैर फाल है। लिया और भक्कर की 13 लाख एकड़ अराजी गैर आबाद पड़ी हुई है। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। थाल की बंजर जमीनों को आबाद करने के लिए 1950 में थाल डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाई गई, जिसके तहत जनूबी एशिया की सबसे बड़ी जरी वर्कशॉप लिया में कायम हुई। खुशाब, मियांवाली, भक्खर, लिया, मुजफ्फरगढ़ और DG खान की जमीनों की आबादकारी के लिए करोड़ों की हैवी मशीनरी मंगवाई गई, मगर 2010 में वर्कशॉप को 2 डिविजनल एरिया में तकसीम किया गया। हुकूमती अदम तवज्जुही के बहस बिल्डोजर कबाड़, जबकि बिल्डिंग खस्ताहाल हो चुकी है। करोड़ों की जरी मशीनरी गैर फाल होने से 13 लाख एकड़ से ज्यादा लिया और भक्कर की राजी वीरान पड़ी है। एक्शन लिया डिवीजन उमर अंधावा ने बताया कि 23 बिल्डोजर मौजूद हैं लेकिन नाकाफी हैं। हमारा डिस्ट्रिक्ट लिया और बकर में इसी नीड बेस्ड के ऊपर ये वर्कशॉप का डिवीजन लिया और बकर को शामिल करके यहाँ पे बनाया गया। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 23 बुलडोजर हैं जो कि बिल्कुल फंक्शनल हैं, जिनको हम अपने अवेलेबल रिसोर्सेज के अंदर जो निहायत महदूद हैं हम फार्मर्स को बेस्ट डिलीवरी देने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह कर रहे हैं। अब हुकूमत की जानिब से ग्रेटर थाल का मंसूबा शुरू हो चुका है। बंजर जमीनों को फिर से आबाद किया जाएगा। SDO मुर्तजा ने वर्कशॉप की जरूरियात को पूरा करने का मुतालबा किया। इस हमारे एक्सीएन साहब ने बताया कि हमारे जो बिल्डोजर हैं ये अपनी लाइफ एज जो है वो पूरी कर चुके हैं। अब इनको ज़्यादा रिहेबिलिटेशन की ज़रूरत है, ज़्यादा रिपेयर एंड मेंटेनेंस की ज़रूरत है ताकि ये फर्दर जो हमारा रहता है बरानी एरिया उसको आबाद करने में हम जो है ना इसको कारआमद बना सकें। 100 कनाल अराजी पर मुश्तमिल जरी वर्कशॉप की बेहतरी के लिए पुरानी मशीनरी को तब्दील करना होगा। जरूरत इस अमर की है कि थर्ड डिवीजन की इस जरी वर्कशॉप को जदीद तगाजों से हम आहंग करके किसानों के मसाइल के हल के लिए यहाँ पर इकदाम किए जाएं। कैमरा टीम के साथ जहद सरफराज, लिया। कुछ बात करें हालिया वबा की तो कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए इकदाम मजीद तेज कर दिए गए। पंजाब को रोजाना 4,20,000 अफराद को कोरोना वैक्सीन लगाने का टारगेट मिल गया। जनूबी पंजाब समेत सूबे भर में 6 करोड़ 28 लाख से ज्यादा अफराद को वैक्सीन लगना बाकी है। कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए इकदाम मजीद तेज कर दिए गए। पंजाब को रोजाना 4,20,000 अफराद को कोरोना वैक्सीन लगाने का टारगेट मिल गया। पंजाब में अब तक 42 लाख से ज्यादा अफराद को कोरोना वैक्सीन लगाई जा चुकी है। मजमूई तौर पर जनूबी पंजाब समेत सूबा भर में 6 करोड़ 28 लाख से ज्यादा अफराद को वैक्सीन लगना बाकी है। पंजाब में 18 साल से ज्यादा उम्र की सिर्फ 6% आबादी को वैक्सीन लगी है। मुजफ्फरगढ़, लोधरा, लिया और राजनपुर में वैक्सीनेशन मुहिम सबसे ज्यादा सुस्त रवि का शिकार है। सूबा भर में 18 साल से ज्यादा उम्र के 6 करोड़ 71 लाख से ज्यादा अफराद हैं। पंजाब हुकूमत ने भारी भरकम चालान अदा करने की सिफारिशात मंजूर कर ली। बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल सवार 600 जबकि जाली नंबर प्लेट पर 1,000 रुपए का चालान किया जाएगा। रिपोर्ट देखिए। खबरदार, होशियार, ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियाँ नहीं होंगी अब बर्दाश्त, क्योंकि पंजाब हुकूमत ने ट्रैफिक चालान में मजीद इजाफे की सिफारिशात मंजूर कर ली। मोटरसाइकिल बगैर हेलमेट चलाने पर अब 200 की बजाय भरना पड़ेगा 600 रुपए का भारी भरकम चालान। मोटरसाइकिल सवार शहरियों ने चालान में बेपनाह इजाफे को हुकूमत का जालमाना फैसला करार दे दिया। हम यहाँ कमाने आते हैं, यहाँ 200 रुपए का चालान जो होता है वो 1,000 रुपए का चालान कर देते हैं।
बिना बात कोई बात ना चीत होती है ऐसी रोकते हैं और रोक के चालान पकड़ा देते हैं हाथ में। हम गरीब आदमी, हम क्या करें। कानून शिथिल करने वाले रक्षा ड्राइवर्स हों या फिर रैश ड्राइविंग करने वाले हजरात, अब 1000 रुपए का होगा जुर्माना। इंचार्ज सर्कल सिटी मोहम्मद एहसान का कहना था कि नोटिफिकेशन वसूल होते ही चालान में इजाफे के फैसले पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाएगा। जो चालान है, चालान अवाम ये ना समझे कि हमारी इसमें जो है ना तज़ीक की जा रही है या हमारे ऊपर कोई ऐसा फाइन इम्प्लीमेंट किया गया। हम फाइन देने के हक में हरगिज नहीं है। पंजाब हुकूमत ने ड्राइविंग लाइसेंस न होने पर मोटरसाइकिल सवार और रक्षा पर 600 रुपए जबकि कार सवार पर 750 रुपए का चालान करने की मंजूरी भी दे दी। जाली नंबर प्लेट वाली मोटरसाइकिल पर 1000 और गाड़ी पर 2000 रुपए तक का जुर्माना बढ़ाने का भी फैसला मंजूर कर लिया गया। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वाले अब हो जाएं होशियार, क्योंकि सिटी ट्रैफिक पुलिस ने कमर कस ली है। हेलमेट ना पहनने और सीट बेल्ट का इस्तेमाल ना करने पर आपको अदा करना पड़ेगा भारी भरकम चालान। कैमरामैन मुगीस शहजाद के साथ सरदार अली खान, मुल्तान। अभी आपको बताएं, रहीम यार खान में एमएनए जावेद इकबाल वड़ाइश ने मैपको ऑफिस और शहर का दौरा किया, बिजली बहाली के कामों का भी जायजा लिया। आसिम सिद्दीक की रिपोर्ट। गुज़श्ता रोज तेज आंधी और बारिश के बायस बिजली का निजाम धर्म भरम हो गया। मुतअद्दिद खंभे और दरख्त उखड़ गए जिसकी वजह से 80 फीडर बंद हो गए जबकि निशेबी इलाके भी पानी में डूब गए। एमएनए जावेद इकबाल वड़ाइश ने मैपको ऑफिस का दौरा किया और इमदादी कामों का जायजा लिया। इनका कहना था कि शहर में 60 फीडर चला दिए गए, नए खंभे न होने की वजह से 20 फीडर नहीं चल सके। अब नए खंभे मुल्तान से मंगवा लिए गए हैं। 80 फीडर जो वो ट्रिप कर गए थे, दरख्त गिरे हैं, तारें टूट गई हैं, पोल गिर गए हैं, पोल है नहीं हमारे पास। वो मैंने सीओ साहब को कहा कि हमें फौरी तौर पे यहाँ पे पोल भेजे, तो उसके साथ हमने तकरीबन 60 फीडर चला दिए हैं, सिर्फ 20 फीडर हैं, उन पे भी काम हो रहा है। जावेद इकबाल वड़ाइश ने बरवक्त नकासी आप पर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अमले की काविशों को सराहा। चीफ ऑफिसर अजमत कदीर गुराया का कहना था कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का अमला रात से मुसलसल काम कर रहा है। ये हमारी जिम्मेदारी है और ड्यूटी तो हमारी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की है कि नशेबी इलाकों से पानी निकालें, लेकिन हमारी हौसला अफजाई के लिए एमएनए साहब जावेद इकबाल वड़ाइश साहब और फरूक वड़ाइश साहब उनके नुमाइंदे रात को भी हमारे साथ रहे हैं और अब भी हमारे साथ हैं। बिजली का मुकम्मल निजाम बहाल होने में मजीद 24 घंटे लग सकते हैं जबकि निकासी आपके लिए भी 12 घंटे दरकार है। कैमरामैन अनवर सोहेल के साथ आसिम सदीक, रोही, रहीम यार खान। मुल्तान सिटी के 146 स्कूल्स को सफाई सुथराई के लिए 82 लाख रुपए के फंड्स फराहम कर दिए गए हैं। 120 प्राइमरी और 26 एलिमेंट्री स्कूलों को फंड्स दिए गए हैं। डिप्टी डीओ सिटी सुल्तान असलम राना का कहना है कि तमाम स्कूलों में ठंडे पानी को यकीनी बनाया जाएगा। कोविड-19 एसओपीज पर अमल दरामद कराने के इंतजाम मुकम्मल किए जाएंगे। स्कूल के कमरों को हवादार बनाया जाएगा। बच्चों को एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद कराने के इंतजाम किए जाएंगे। सरगोदा में भी 7 जून को स्कूल खुल जाएंगे। तलबा कमर कस लें, इस हवाले से महकमा तालीम ने तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। सीओ एजुकेशन सरगोदा कदीर भट्टी कहते हैं कि स्कूलों में बच्चों की आमद से कबल तमाम तर इक़दामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। बच्चों को स्कूल में किसी किस्म की मुश्किलात दरपेश नहीं होंगी। सरगोदा में भी 7 जून को स्कूल खुल जाएंगे। सरगोदा में स्कूल खुलने के हवाले से महकमा तालीम के इकदामात जारी हैं। महकमा तालीम सरगोदा ने तैयारियां शुरू कर दी। सीओ एजुकेशन सरगोदा रियाज कदीर भट्टी ने रोही से गुफ्तगू करते हुए कहा कि गर्मियों की वजह से तालिबे इल्मों का स्कूल में खास ख्याल रखा जाएगा, जिस पर हिकमत अमली मुरतब कर ली गई है। मौसम की सख्ती पे कोई शक नहीं, लेकिन चूंकि हमने अब जो 7 तारीख से सब बच्चों को बुलाया है, उसमें रेगुलर क्लासेस नहीं होनी, उसमें बच्चों का एग्ज़ाम ही कंडक्ट करवाया जाएगा। तो मुझे उम्मीद ये है कि जो हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, कम से कम इनमें कोई इशू नहीं आएगा। स्कूलों में बच्चों की आमद से सीईओ एजुकेशन सरगोदा रियाज कदीर भट्टी कहते हैं स्कूल खुलने से कबल तमाम इकदामात कर दिए गए हैं। टीचर्स को बता दिया गया है कि कोरोना एसओपीज के साथ साथ गर्मी में ठंडा पानी और दीगर सहूलियात की दस्तयाबी को यकीनी बनाया जाए। सीईओ एजुकेशन सरगोदा रियाज कदीर भट्टी कहते हैं वालिदैन बगैर फिक्र के बच्चों की हाजिरी यकीनी बनाए, बच्चों को स्कूल में किसी किस्म की मुश्किलात नहीं होने देंगे। कैमरामैन फैजान खान के साथ मोहसिन मोल्क, ब्यूरो चीफ सरगोदा। मुल्तानियों के लिए अच्छी खबर सामने आ गई। मियावाकी जंगल लगाने का आगाज कर दिया गया है। विहाड़ी चौक के लीनियर पार्क में दरख्तों के लिए खुदाई का अमल शुरू कर दिया गया। ये रिपोर्ट देखिए। टीएचए मुल्तान ने मियावाकी जंगल लगाने के लिए विहाड़ी चौक के लीनियर पार्क में काम का आगाज कर दिया। 5 मकामात पर मकामी दरख्तों के साथ साथ फलदार और इजनास के 30,000 से ज्यादा दरख्तों की शजरकारी की जाएगी। मुल्तान शहर में लीनियर पार्क, विहाड़ी चौक, कबूतर मंडी पार्क,
قدیمی گراؤنڈ ممتاز آباد، کھجی والا گراؤنڈ اور مسلم کالونی پارک میں میاواکی جنگل لگائے جائیں گے۔ اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہارٹی کلچر نے بتایا کہ میاواکی جنگل سے ماحول میں خوشگوار تبدیلی آئے گی۔ تمام بڑے سائز کے درخت لگائے جائیں گے۔ وائلڈ لائف ہے، اس کو اٹریکشن ملتی ہے، اور یہ جو ماحول دوست گرین پاکٹس ہے، یہ شہر کے اندر جو کنسیپٹ ہے، اسی کے تحت ملتان کو 5 جگہوں کو منتخب کیا گیا ہے۔ اس پہلے یہاں پہ کام شروع ہو چکا ہے۔ لینئر پارک بہاڑی چوک پر 5000 سے زائد درخت لگائے جائیں گے۔ شہر اولیا ملتان میں میاواکی فارسٹری پلان کے تحت ملتان کے لینئر پارک بہاڑی چوک پر کام شروع ہو گیا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ آئندہ چند ماہ میں ملتان شہر کے 5 مقامات پر گھنے جنگل لگا دیے جائیں گے۔ کیمرمین مغیث شہزاد کے ساتھ علی ریاض، ملتان۔